علیکم، میں مظفر ساگر اور آپ دیکھ رہے ہیں فضیلت رمضان۔ آج ہمارے سحری کے جو مہمان ہیں وہ بڑی اعلیٰ شخصیت کے مالک ہیں۔ ہم ان کا تعارف کرائیں گے، لیکن سب سے پہلے میں اب بتاتا چلوں کہ ہماری جو کو ہوسٹ ہیں زینب چودھری، وہ بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں روز کی طرح۔ کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ آج ہمارے یہاں مہمان سحری کے مہمان ہیں اور ماشاءاللہ سے بڑی بڑی شخصیات، آج بہت اچھی شخصیات ہیں اور نعت خواں بھی ہیں ہمارے ساتھ، ایک چھوٹی سی بچی بھی ہے نعت خواں۔ بالکل، پہلے ہم تعارف کرا دیں، باقاعدہ ہم تعارف کرا لیتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آج وہ شخصیت موجود ہیں جنہوں نے زندگی کے 42 سال سے اپنے گھر میں میلاد و نعت اور میلاد کی محفل سجاتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور اگر وہ جب پاکستان نہیں ہوتی تو وہ امریکہ میں جب ہوتی ہیں تو پھر وہ محفل وہاں بھی سجائی جاتی ہے، اور کچھ یہاں جو ان کے لوگ ہیں، جو ان کے اپنے قریبی جو لوگ ہیں، وہ سمجھ لیں ان کے پیاروں سمجھ لیں، ان کو پرسنل لوگ سمجھ لیں، اگر وہ یہاں نہیں ہوتی، موجود نہیں ہوتی، تو وہ یہاں پر محفل ضرور ہوتی ہے۔ اس 42 سال کے عرصے کے اندر کتنے نشیب و فراز آ چکے ہیں، کتنے اتار چڑھاؤ، کبھی کرونا بھی لگ گئے، حالات بھی خراب ہوئے، ہنگامے بھی ہوئے، ہڑتالیں بھی ہوئی ہیں، کرفیو بھی نافذ ہوئے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ہماری بہن جو ہیں صوفیہ بی بی، انہوں نے یہ محفل کرانا نہیں چھوڑی۔ صوفیہ بی بی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیسی ہیں بہن؟ ٹھیک ہیں۔ ان کے ساتھ آج ہمارے ساتھ ایک ننھی سی چھوٹی سی پیاری سی شہزادی موجود ہے، جو اپنی پیاری سی آواز سے ہمیں نعت جو ہے وہ ہم یہاں پہ وہ اس محفل میں سنائے گی۔ ماہر فاطمہ، کیسی بیٹا آپ؟ ٹھیک ہیں۔ ان کے ساتھ تیسری جو شخصیت جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، دربار سلطانی سے ان کا گہرا تعلق ہے، اور دربار سلطانی کے یوں سمجھ لیں روح رواں بھی ہیں، اور ان کے جتنے وہاں کے جو بڑے کابرین ہیں اور جو وہاں چلانے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ان کا بڑا غور ہے، اور بہت ٹائم سے، کافی عرصے سے جو ہے یہ دربار سلطانی میں کتنے عرصے سے ہیں، یہ ہم ابھی پروگرام کے دوران ان سے پوچھیں گے۔ محمد شاہد سلطانی، کیسے ہیں شاہد صاحب؟ اور ان کے برابر میں جو شخصیت بیٹھی ہوئی وہ تو کسی تعارف کی محتاج ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ رائل نیوز کے ہمارے اینکر پرسن بھی ہیں، سینئر تجزیہ کار بھی ہیں، موسٹ سینئر تجزیہ کار، اور پولیٹیکل سیاسی امور پہ اگر ہم سوچیں اور دیکھیں تو ان کا بڑا ایک ہلکا احباب ہے جس کے اندر وہ مشہور ہیں، ایس کے اعداد صاحب۔ کیسے ہیں ایس کے صاحب آپ؟ ٹھیک ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آج ہم ایسا کرتے ہیں کہ تلاوت کلام پاک ہم آپ سے ہی افتتاح کر دیتے ہیں، تو تلاوت کلام پاک آپ کی بھی آواز بہت اچھی ہے، ہم نہیں آپ سے سننا چاہ رہے ہیں، نہیں آج آپ سنا دیں۔ آج اظہار صاحب کر لیتے ہیں، یار میں میرا تھوڑا سا گلا بیٹھا ہوا ہے۔ آج اظہار بھائی ہمارے جو ہیں وہ تلاوت کلام پاک پیش کریں گے، تو اظہار بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العزیز العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اکثر شاید میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا ایس کے کی جگہ نعت خواں لگا لیں یا قاری لگا لیں، آپ یہ ماشاء اللہ اچھی پڑھتے ہیں۔ اب میں اپنی چھوٹی سی ہماری جو شہزادی ہیں بچی، اس کو میں دعوت دوں گا، وہ نعت مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے بیٹا آپ یہیں بیٹھ کے جو ہیں وہ آپ سنائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو ماہر فاطمہ۔ روشنی کا ظلمتوں کا زمان، کیا آواز ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ابھی وہی عکس جمال، کس کا جے کمال، کس کا جے کمال، مین میم دا
अर्श तो फर्श है, अर्श पर भी नहीं, ऐसी कोई नज़ीर, ऐसी कोई मिसाल, किसका जे कमाल, किसका जे कमाल, मीम हा मीम दा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो इशारा करे तो शजर चल पड़े, हाथ उनके उठे, डूबा सूरज फिरे, चांद दो टुकड़े हो कर दोबारा जुड़े, वो न हो तो रुके गर्दिशे माहुसा, किसका जे कमाल, किसका जे कमाल, मीम हा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बेटा, बहुत माशाल्लाह। बहुत प्यारी और बहुत सुरीली और बहुत ही प्यारी आवाज़ माशाल्लाह, और अंदाज भी अल्लाह खुश रखे बेटा। बहुत अच्छे नाते हाँ माशाल्लाह, अंदाज भी बहुत अच्छा है। माहिर एक और अच्छी थी नाम। देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं, देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं, हाँ मगर महबूब कोई आप सा देखा नहीं, देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं, मीम का पर्दा हटा कर वो निगाहें शौक से, मीम का पर्दा हटा कर वो निगाहें शौक से, मुस्तफा को देख ले जिसमें खुदा देखा नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जितनी प्यारी बच्ची माशाल्लाह उतनी प्यारी आवाज़ और उतना ही अच्छा तरीका नात पढ़ने का। नात का इसका माशाल्लाह बच्ची का स्टाइल बहुत अच्छा है। हमारे हर अल्फाजों का उतार चढ़ाव बिल्कुल, इसकी लेआउट जो है माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची। इसको बेटा आप कंटिन्यू रखो और इंशाअल्लाह एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत बड़ी नात ख्वाह आप बनो। इंशाअल्लाह। आप इसको कंटिन्यू रखो, इसके ऊपर वर्किंग करें। ठीक है, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हमने तिलावत कलाम पाक से और उसके बाद नात मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। अब हम बाकायदा में हम सबसे पहले बात करेंगे, हमारी बहन यहाँ मौजूद हैं सूफिया बीबी, उनसे बात करेंगे और उनसे हम ये पूछेंगे कि ये 42 साल का अरसा जो आपने लगाया है उस पर क्या उतार चढ़ाव, क्या नशेब फराज आपने देखा है, आपने 42 साल के अरसे। बस काफ़ी लोग बोलते थे क्यों आप करवाते, मैं हर मंडे करवाती हूँ। जी मैं फिर पहले सूरह इखलास, पहले दुरूद शरीफ का ख़त्म होता है, फिर सूरह इखलास का ख़त्म होता है काफ़ी। जी। उसके बाद जो है नात ख़वानी वगैरह होती है, फिर दुआ होती है, फिर लंगर होती है, सलाम होता है। तो हमारी काफ़ी 3 घंटे की मतलब महफिल होती है। माशाल्लाह काफ़ी लोग आते हैं, 50-60 तो ख़वातीन आती ही आती हैं, अच्छा, बड़े माशाल्लाह। अक़ीदत से आती हैं माशाल्लाह। हमारे यहाँ सबकी मन्नतें मुरादें भी लेकर आती हैं, तो सूरह इखलास के हाजतों को पूरा करने वाली है, तो अल्लाह की ज़ात उनके लिए वो मन्नत मांगते, बादाम उठाते, बादामों को पड़े जाते हैं, तो मन्नतें पूरी होती हैं। काफ़ी एज की लड़कियों की भी शादियाँ भी हुई, मन्नतें मांगी, इसकी जो जो मुराद थी वो पूरी होती है माशाल्लाह। सब फैज़ पा रहे हैं। अच्छा, ये काम जो आपने स्टार्ट किया, आपने कोई ख्वाब देखा था उसके नहीं, बाद? मुझे काफ़ी लोगों ने कहा ये तो मरने पे कुल पढ़ाए जाते हैं, आप क्यों पढ़वाती हैं, ये क्यों करती हैं। काफ़ी लोग तावीलें देते हैं ना, बहुत से लोग पसंद नहीं करते जी। इस चीज़ को।
تو میں نے سوچا شاید میں غلط کر رہی ہوں یا مجھے نہیں کرنا چاہیے. میرے بھی دل میں ظاہر انسان ہوں, تھوڑی چھوٹا کوئی مجھے کہ کرواؤں یا نہیں کرواؤں, کیا کروں گی. سب لوگ ایسے منع کریں مجھے, یہاں تک میرے اپنے خاندان والے بھی اعتراض کرنے لگے کہ کیوں کرنا ہے. میں ایسی سو گئی خواب میں. اچھا. خواب میں نے دیکھا کہ میں بہت اونچی کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہوں, گولڈن کلر کی, میرون کلر کا اس پہ کور رکھا ہوا ہے, اور میں اوپر بیٹھی ہوں. وہاں مجھے سائڈ پہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی مور کے پر نہیں ہوتے, جی وہ کھڑے. پھر ایک بزرگ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ جو کام کریں وہ آپ کرتے رہیں, آپ کے بہت پریشانیاں آئیں گی, آپ کو بہت تکلیفیں آئیں گی اس میں, تو آپ کو بند نہیں کرنا ہے. جیسے انہوں نے, میں نے دیکھنا تھا کہ حضور ہے کیا, وسلم ہے شاید ہی, مجھے سمجھا صحیح بول رہے ہوں گے. نہیں میں نہیں بند کروں, میں کرتی رہوں گی, مرنے تک میں کروں گی. میں نے ان سے عہد لے لیا کہ نہیں, چاہے میں جیوں مروں, جب تک میں زندہ ہوں میں یہ کرتی رہوں, چاہے کچھ بھی ہوتا ہے. اچھا, پاکستان میں آپ ہمیں پتہ چلا کہ آپ 6 مہینے پاکستان میں رہتی ہیں اور 6 مہینے امریکہ میں رہتی ہیں, تو امریکہ میں بھی یہ آپ ماشاء اللہ میں وہاں پہ بھی نعتیں وغیرہ پروگرام اپنی بیٹی ہوئی میں کرواتی رہتی ہوں. مجھے ایک بھوک سی ہے نا, مجھے تو کرنا ہی ہے سے کہ ان کو یہ بات بتاتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. وہ وہاں پر, یہاں پہ میرے ہیں ماشاء اللہ بہت ساری خواتین ہیں میری, حصہ لیتی ہیں. میری غیر موجودگی میں بھی وہ لوگ سنبھالتے ہیں میری محفل کو. وہاں سے میں گائیڈ کرتی ہوں, لنگر وغیرہ کا میں بتا کر جاتی ہوں. کیٹرنگ والے کو بیچارہ بنا پیسے لیے ہی میرے آنے تک وہ بھیجتا رہتا ہے, تو میں آ کے اس کو پیمنٹ کرتی ہوں. وہاں سے آڈر کر دیتی ہوں, بھائی کھانا بھیج دو. جی ماشاء اللہ کافی خواتین کو فیض مل رہا ہے, بہت سے لوگ سدھر گئے, بہت سے لوگوں کو نصیحتیں مل رہی ہیں, درس بھی ہوتا ہے, اچھی باتیں ہوتی ہیں, کفن وغیرہ کا سب سکھاتے ہیں ہم لوگ, نہلانا غسل دینا. میں بھی غسل دیتی ہوں, میں یہ تو نہیں کرتی. یہ سب چیزیں ہم خواتین کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں. دربار سلطانی شاہد بھائی کہ آپ ماشاءاللہ ایک کافی عرصے سے, مجھے اس کا اس کا بالکل فگر نہیں معلوم کتنا ٹائم ہو گیا, وہ میں آپ سے پوچھوں گا. سر میں 1983 میں دربار سلطانی میں اتفاق سے حضرت صاحب نماز پڑھنے گیا. جی میں نے وہاں پر حضرت پورے مرشد کو دیکھا تو ایسا لگا ہوا کہ اس دن سے میں حضرت کے یہاں پہ بیٹھ. کیا ان کا کیا نام, پورا نام شاہ محمد سلطانی ہے. سلطانی, ماشاء اچھا. ان کے یہاں پہ بیٹھ کی میں نے, اور جب سے میں نے ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ کا کرم کرنے والا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی رہنمائی سے میں نے ماشاء اللہ بہت کچھ ان سے محبت حاصل کی اور بہت ترقی کی. میں نے مطلب جو بھی اس مقام پہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے اور بہت فیض پہنچا. اور میں یہ دیکھا ہے کہ کبھی میں کسی پریشانی میں مبتلا ہوا, اور اس بات کو تقریباً 40-45 سال ہو گئے میں حضرت کو مثال کے ہوئے, لیکن آج بھی کبھی میں پریشان ہوتا ہوں, کسی حال میں ہوتا ہوں, تو ہم آتے ہیں اور میرا دیدار کرتے ہیں اور میری رہنمائی فرماتے ہیں. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. تو آپ مقصد آپ کو 1983 سے یعنی کہ 42 سال تقریباً آپ کو بھی اتنا ہی ٹائم ہو گیا, فاجی کو جتنا ٹائم ہوا ہے یہ کراتے ہوئے میلاد اور محفل جو کراتے ہیں, اتنا ہی ٹائم آپ کو بھی ہو گیا دربار سلطانی کی خدمت کرتے ہوئے. تو کیسا محسوس کرتے ہیں آپ جب وہاں جاتے ہیں؟ سر ایک روحانی طور پہ جو قلب ملتا ہے نا, پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں وہاں پہ جو درس ملتا ہے اس میں کسی فرقے کی بات نہیں ہوتی, کسی مذہب کی بات نہیں ہوتی, انسانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ صرف درس دیا جاتا ہے اور ہمیں اور کچھ نہیں ہوتا. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی ہوگی آزاد ہوا پھر اچھے بتائے ہوئے راستہ پہ کسی کو مطلب مسلمان بھائیوں کی ہیلپ کرنا, مدد کرنا, اس طرح کا میں درس دیا. ماشاء اللہ. ابھی انشاءاللہ ابھی ہم ایک چھوٹے سے شارٹ بریک کی طرف جا رہے ہیں, اور شارٹ بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو فضیلت رمضان کے حوالے سے ہم کچھ بات چیت کریں گے, اپنی بہن سے بھی بات کریں گے, آپ سے بھی کریں گے, اس کے اظہار صاحب سے بھی کریں گے, ایک چھوٹے سے شارٹ بریک کے بعد. چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں بڑی بڑی خوشیاں, ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں ماما کی پوری دنیا. بچوں کا پیٹ ہے ان کی مٹھی جتنا, بھر تو جاتا ہے مگر غذائیت ادھوری رہ جاتی ہے. اسی لیے پاکستان میں ہر چوتھا بچہ آئرن کی کمی کا شکار ہے. کیا آپ کا بچہ تو نہیں؟ نیسلے سیریلیک میں ہے خالص گندم, چاول اور پھلوں کی خوبیاں.
आयरन और प्रोबायोटिक के साथ, यानी वो अहम अज्जा जिनकी आपके बच्चों को जरूरत है। तो आज नहीं, अभी अपने बच्चे से शुरू करें ताकि पाकिस्तान के हर नन्हे पेट को मिले बड़ी ग़िज़ाइयत। नेस्ले सेरेलैक, हर प्याले में ग़िज़ाइयत का एतमाद। ब्रेक में खुश आमदीद। ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी फजीलत रमज़ान के हवाले से, तारुफी हमने वो किया था। ज़ैनब, आप क्या कह रही हैं, आप क्या करवाना चाह रही हैं आप आज इस वक्त? हमारे पास जो है बहुत ही प्यारी सी नात ख्वाह बैठी हुई हैं, सैयदा शुमाइला। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अपनी प्यारी सी आवाज़ में जो है हमें नात सुनाएंगी। जी सुनाएं। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह न बना लिया, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह न बना लिया। ये बड़े ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। तुझे मुनव्वर बेनवा दरिशा से चाहिए और क्या, तुझे मुनव्वर बेनवा दरिशा से चाहिए और क्या। जो नसीब हो कभी सामना तो बड़े नसीब की बात है। जो नसीब हो कभी सामना तो बड़े नसीब की बात है। न कहीं से दूर है मंजिलें, न कोई करीब की बात है। सुभान अल्लाह। ये बड़ी, ये सैयदों की जो है ये बड़ी शान है कि सैयद की जो ये एक शनाख्त है, ये पहचान है उनकी, उनकी खूबसूरती आवाज़ में, खूबसूरती एक जादू है जो नात में। क्या ख्याल है, दूसरी नात सुनी जाए? जी बिल्कुल सुन ली जाए। मेरा गदा मेरा बनता मेरा नाम आए, कभी तेरे बाप से बयान आए।
मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को, मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को, जनाबे सरके सदके में ऐसी शाम आई, जनाबे सरके सदके में ऐसी शाम आई, मेरा मददा मेरा मददा मेरा गुलाम आए। क्या माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत जैसे ही खुद खूबसूरत है वैसे इनकी आवाज़ भी खूबसूरत है। माशाल्लाह से ये असल में बात ये है ज़ैनब के ये सैयद लोग होते हैं ना, ये चेहरे पे एक अलग सा उनके हाँ नूर, उनके चेहरे पे नूरानियत और उनकी आवाज़ में खूबसूरती जी, और बिल्कुल। सुरीलापन जो है वो ये कुदरत की तरफ से होता है। ये जी। हमने और आपका इसमें नहीं है, ये ज़ात ही ऐसी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से चले आ रही है जी, ये ज़ात, बिल्कुल। तो ये गॉड गिफ्टेड है बिल्कुल। और ख्याल है आपका माशाल्लाह भी जिस तरह नात मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किया गया, तो इस नात से हम फजीलत रमज़ान, आज का भी हमारा प्रोग्राम फजीलत रमज़ान है, फजीलत रमज़ान के हवाले से कुछ नाज़रीन आपकी बात सुनना चाह रहे हैं कि आप फजीलत रमज़ान किस तरीके से बयान करते हैं, जरा प्लीज़ बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सागर साहब, देखिए रमज़ान मुबारक है और हम शहरी ट्रांसमिशन में बैठे हैं माशाल्लाह। जी जी माशाल्लाह। और अल्लाह से ये दुआ है कि रमज़ान की फजीलत अल्लाह सब पर अपना फजल और फजल करम करे, जी अपना फजल रखे। देखिए जो अभी मोहतरमा ने नात में मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा, यकीनन ये जाने कि नात यहाँ पढ़ी जा रही है, नात यहाँ पढ़ी जा रही है स्टूडियो में पढ़ी जा रही है, जी, लेकिन इसकी खुशबू उसकी खुशबू कुल कायनात सुभान अल्लाह, दुनिया में जो कि नबी से मंसूब है, बेशक नात मकबूल सल्लल्लाहु नबी से मंसूब है साहब साहब। जी जी और रमज़ान में फजीलत जो है उसकी यही फजीलत है कि नात मकबूल पढ़ी जाए, सना खानी की जाए, मिलाद खानी की जाए, नबी के शान में कोई बात की जाए, सीरत बयान की जाए, तो इसकी फजीलत ये कि वो बंदा हाजिर हो या ना हो, कुल कायनात उनकी आवाज़, उनके नाम, उनका मकाम, उनकी इज्जत एहतराम धूम मचा रहा होता है। ये फजीलत है। क्या बात, तो ना तो इन्होंने पढ़ा लेकिन धूम पूरा दुनिया मच गया। रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर हम यहाँ बैठे, रूहानी तौर पर अल्लाह ताला जो दो फरिश्ते बैठाए हैं वो इस बात को नोट कर रहे हैं, नोटिंग कर रहे हैं जो खातून ने, जो साहबा ने नातखानी की है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में, जो चीज़ बयान की है नात के अंदाज में, नातिया अंदाज में, वो अल्लाह नबी को बहुत पसंदीदा अमल है, बहुत पसंदीदा अमल है। और बिलख़ासूस रमज़ान मुबारक के महीने में इसकी ये बहुत बड़ी फजीलत है कि अल्लाह ताला ने उनके सीने में, उनके ज़बान में, उनके हल्क में ऐसी उन्होंने खुशबलानियत दी है कि वो रोज़ा मतलब शहरी के प्रोग्राम में है और उन्होंने खुशबलानी के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान किया नातिया अंदाज में। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह, ये बात हो गई। माशाल्लाह। दूसरी बात, जो बच्चे ने भी नात पढ़ी तो माशाल्लाह काबिल सताइश है, और दुआ को उनके वालिदैन के लिए भी जिन्होंने अपने बच्चों का तरबियत दिया, जिन्होंने नात सिखाया। दीनी तालीम, दुनिया तालीम बिल्कुल बेहद ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ नात का जिन्होंने मतलब के बच्चे को जो मतलब सिखाया है, अल्लाह ताला उन्हें भी जज़ा खैर अता फरमाएगा, उन्हें भी अल्लाह ताला आला मकाम मर्तबा अता फरमाएगा इस रमज़ान मुबारक के बरकत जलीला से। ये रमज़ान का फजीलत है कि फजीलत जो है वो अल्लाह ताला अल्लाह ताला का फजल हर महीने, हर दिन, हर लम्हा होता है, लेकिन खसूस अल्लाह ताला ने एक माह बनाया जिसमें कुरान पाक की नज़र हुई इस रमज़ान मुबारक के महीने में। इसकी बरकत जलीला से, इसकी फजीलत यही है कि इससे बड़ा कोई मुकाम नहीं है। कुरान मजीद का नज़ुल फरमाया और रोज़ा को फर्ज फरमाया, ज़कात उसरे को आम करने ने कहा कि जो गरीब बेसहारा लोग हैं उसको जिसको साबे हैसियत है उस ज़कात और फितरा का अमल को उन गरीबों को दे के इस अमल को यकीनी बनाए ताकि उसको भी होठों में मुस्कुराहट आए।
माशाल्लाह, बिल्कुल आप बड़ी अच्छी आपकी ये एजाज़ा बड़ी क्वालिटी है। आप बड़ी जो भी कोई बात करते हैं तफसील से करते हैं, तशरीह से करते हैं। ज़ैनब क्या ख्याल है? वही हवाला दे दो, तशरीह कर देते हैं। हमारी नाथवा माहिर जो बेटी हुई वो उसने भी बड़ी गौर से आपकी तशरीह को सुनी है और कुछ मकामात पर तो मुस्कुराई भी है माशाल्लाह, है ना बेटा? ऐसा ही है। शाहिद साहब, आपसे एक छोटी सी बात करनी थी। आप दरबार सुल्तानी के आप माशाल्लाह एक 1983 से वहाँ के जो हैं आप करता धरता हैं, उनके मोहब्बत करते हैं, अकीदा करते हैं। बहुत सारे उनके करामात से तो बहुत सारे होंगे, बहुत सारे हैं जो ऑन द रिकॉर्ड भी हैं, लेकिन कोई ख़ास ऐसा कोई जलवा, कोई ऐसी करामात जो आपको याद हो और आप किसी को बताते हुए फ़ख्र महसूस करते हो, तो कोई ऐसा कोई वाक़या कोई ऐसा? बिल्कुल ज़रूर। मैं अलहमदुलिल्लाह मुझे बताते हुए फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैं हमारे पास है। अच्छा, वो आपकी जितनी भी नशर इशात होती है पब्लिक रिलेशंस के मुताबिक, तो प्रेस रिलीज में ही इशू करता हूँ, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मेरे बचपन से मेरे सर में बहुत दर्द रहता था। अच्छा, ये बात 1985-86 की बात की है। मेरे सर में बहुत दर्द होता, डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था मुझे। अब मैं इतना परेशान, बचपन की उम्र थी, छोटा सा 1983 छोटा था, तो मैंने देखा कि हमारे जो हज़रत साहब हैं शाह मोहम्मद सुल्तानी साहब जी, ये अपने मुरीदों के साथ आए और मैं मकान में था, मुरीदों के साथ आए जिसमें वहाब साहब थे, जब्बार भाई थे, इकबाल भाई थे, सैयद साहब थे। आने के बाद मैं ख्वाब में देख रहा हूँ और कि हज़रत साहब आए, कहते क्या बात है, क्यों परेशान है? मैंने कहा सर मेरे सर में दर्द होता है बहुत। उन्होंने फिर छोटा सा चाकू निकाला है और चाकू निकालने के बाद मेरे सर का जैसे तरबूज की आग निकालते हैं जी जी इस तरह, और निकालने के बाद दोबारा उसमें फिट किया। सुबह में उठाओ तो मेरे सर में महसूस हुआ कि कोई टाँके लगे हुए हैं। अच्छा, वो दिन है, आज के दिन है, 40 साल हो गए, फिर मेरे सर में दर्द नहीं हुआ। नंबर 2 ये है कि 1990 में मैं अपने मुर्शिद को बहुत रात को सोते वक्त भी याद करता हूँ। मतलब जो भी अल्लाह ताला ने हमें कलाम पाक की सूरतें वो पढ़ते हैं, वो याद करते हैं। और 1990 में मेरा हमारे एक मकान बिका था, तकरीबन 20 लाख का 1990 में। तो छोटे से कमरे में आर्थिक तौर पर किराए पे थे, तो रात को लाइट चली जाती, मैंने मोमबत्ती जो है वो पुराने ज़माने में टेप रिकॉर्ड की कैसेट आती होंगी, उसको मैंने कैसेट पे मोमबत्ती रखी और मैं हम सो गए। एक कमरे में मैं, मेरी माँ, मेरा भाई। मोमबत्ती जल गई, आग लग गई और आग लगने के बाद पूरे कमरे में आग लग गई। अच्छा, एक टेबल पे जहाँ मेरे पीर मुर्शिद की शबी रखी हुई थी उसके पीछे मेरी माँ ने पैसे रख दिए थे। अच्छा, मेरी माँ ने शबी के पीछे, मतलब एक आर्थिक तौर पर किराए के मकान में थे जी, दूसरे तीसरे में शिफ्ट करना था, तो टेबल पे हज़रत की शबी मुबारक थी और पीछे मेरी माँ ने पैसे रख दिए। तो शबी के टेबल के 2 फीट आग के शोले उठे हुए थे, लेकिन शबी को आँच नहीं आई। आग के 2 फीट शोले उठे हुए थे और शबी को कोई नुकसान नहीं, शबी को नुकसान नहीं हो गया। उसकी बदौलत हमारे जो पीछे पैसे थे वो भी बच गए। हमारी कायनात कमाई थी पूरे बचपने की, और 1990 में 20 लाख रुपए बड़ी अहमियत के हामिल थे, करोड़ों रुपए। तो ये मेरे साथ बहुत ये रूहानियत वाली बात है ना, ये रूहानियत वाली बात थी कि अल्लाह से आपने जिस बुजुर्ग का जो जिस हस्ती का सभी थी वहाँ पर, वो अल्लाह से लौ लगा हुए थे, अल्लाह से बहुत करीब थे शायद भाई, अल्लाह से बहुत करीब थे। मतलब कि रियाज़त करना, इबादत करना, ज़्यादा खैर बजा के, छुप के, छुपा के, आया नहीं करना, अल्लाह ही अल्लाह करना। जब अल्लाह जिससे बंदा से राज़ी हो जाए तो सभी क्या, पैसे क्या, कोई कायनात नहीं जलेगी। और आग के लपेट में आ ही नहीं सकता। जहाँ पर नबी का कलमा पढ़ा जा रहा हो, जब अल्लाह की तारीफ में तौसीफ की जा रही हो, वहाँ आग तो क्या, बड़े बड़े आग करीब नहीं आ सकते। भी लकड़ी की थी और लकड़ी का शबी का जो फ्रेम था वो भी लकड़ी का, और आग के शोले 2 फीट दिए। तो मैंने सुनी सुनाई बात नहीं है, मैंने देखा हुआ है आपने, बिल्कुल फिजिकल हुआ है। और शिरक दे जो बिस्मिल्लाह पढ़ दे और फूंक दे, वो आग भी ठंडा हो जाता है। बिस्मिल्लाह की तासीर ये है, लेकिन नियत हो और ज़बान ऐसी हो और अल्लाह से लौ लगाया हुआ हो, दिल से पढ़े और अल्लाह के ऊपर यकीन, वादाने पर यकीन रखे, उसे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के सागर साहब आग में फूंक दिया जाए तो आग ठंडा हो जाएगा और किसी जानवर
खतरनाक जानवर फूक दिया जाए, जब वही खड़ा हो जल फंस जाएगा, आप नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी तरह से अगर बिस्मिल्लाह रहमान पढ़ के समुद्र में चला जाए, दरिया चला जाए, कोई कश्ती वश्ती नहीं है, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ सिद्ध दिल से और खुदा पे बहाने तकता हो, यकीन करता हो, तो वो समुद्र जो है वो पानी नहीं रहेगा, वो संगमरमर का पत्थर का समुद्र अबू कर जाएगा। ये बिस्मिल्लाह की बरकत है। क्या बात है, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह की बरकत की इतनी बेहतरीन तरीके से एजाज साहब ने तशरीह की और हमारे नाज़रीन देखने वाले हैं वो भी बड़े इसको एजाज साहब की बातों को बड़े गौर से सुनते हैं और ख़ास तौर पर जो हमारे मेहमान होते हैं जब जो प्रोग्राम के अंदर बैठे होते हैं वो मेहमान भी बड़े गौर से सुनते हैं। जैसे कि हमारी प्यारी सी जो माहिरा जो है माहिर जो है वो सुन रही है और बड़ी लुत्फ़ अंदोज़ हो रही है इसके एजाज साहब के इन बातों से। एक छोटे से शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, शॉर्ट ब्रेक से वापस आएंगे, फिर से सवालों का सिलसिला, बातचीत का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। एक छोटे से शॉर्ट ब्रेक। जंगल में मंगल का समा था, एक हाथी की सालगिरह थी। खरगोश ने मजे का केक बनाया, शेर बड़ा सा तोहफा लाया, मछली ने जो गुब्बारा फुलाया, तो बादल ने सबको डांस दिखाया। गंदम दूध और मक्खन से बना, प्रीबायोटिक्स की हिफाजत और कैल्शियम से भरा। इंट्रोड्यूसिंग ग्लूकोज जूनियर्स। खेलते जाओ सीखते जाओ। जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब हम चलते हैं दोबारा सुफिया बानो के पास और इनसे मज़ीद कुछ सवालात करते हैं। जी, जब आप जो नात का जो आप कहने का आप 42 साल से जो है ये इस काम को अंजाम दे रही हैं, कैसा फील होता है आपको? दिल में बहुत सुकून मिलता है? बहुत सुकून मिलता है, बहुत खुशी होती है करके और राहत मिलती है और मुझे बड़े फ़ायदे भी हुए हैं। अल्लाह ताला ने हर दुआ मेरी कबूल होती है माशाल्लाह, जिसके लिए मैं करती हूँ इसी की बदौलत यही फ़ायदा मेरे लिए है। और मैंने कभी भी इसमें सोचा नहीं है या कोई तंगी या ऐसा कुछ। अपनी मदद आप करते हैं, वैसे काफ़ी लोग हैं वो भी हिस्सा डालते रहते हैं जिसकी मन्नतें मुरादें पूरी होती हैं तो वो भी। अब जैसे कि आप लोग जब ये महफिल करती हैं तो आप जो है खाने का भी लंगर का भी एहतमाम करती हैं, इंतज़ाम, ये सारे इंतज़ाम आप खुद करती हैं अकेली या? मैं खुद करती हूँ। मेरे जाने के बाद मेरी कुछ ख़वातीन हैं महफिल की जो ख़ास हैं जी करीब वो लोग करते हैं। एक शाहिदा है, एक शबाना है, एक शाहीना है, एक हुमा है, काफ़ी है। मतलब ज़ैनब को कहने का मकसद ये कि आप अपनी मदद आपके तहत ये मदद सारा आप ही सिस्टम करते चला रही हैं। है या कहीं से फंडिंग भी आ रही माशाल्लाह है? मैं किसी से मांगती नहीं हूँ, ना मैंने किसी से बोला है, अपनी मदद माशाल्लाह, आप करती हूँ। अगर किसी की खुशी होती है जो चाहते हैं कि हमें भी शामिल कर लो तो वो कभी कभार मतलब हिस्सा मिला देते हैं, 1000-2000 दीजिए, किसी ने 1000 दीजिए कि आप शामिल करें। बस ऐसा होता है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे ही करना है। इस टाइम पे अगर बहुत ये बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है कि ये खुद अपनी मदद आप इतना बड़ा काम कर रही हैं, सवाब भी सरकार नहीं देना की मैं क्या काम। करूँ तो अल्लाह की देन है, अल्लाह अल्लाह ताला खुद करवाता है। जी मैं सरकार की महफिल उसको ज़्यादा पता होता है मुझसे ज़्यादा, मैं नहीं सोचती। मैं असल तो में अल्लाह बात को- बिल्कुल आप सही कह रही हैं बहन। सरकार की महफिल के लिए आप खाली सोच लें, जी। सिर्फ सोचना ही काफ़ी है। इंतज़ाम कहाँ से होता है इसका कुछ पता नहीं चलता, नहीं, इंतज़ाम अल्लाह ताला खुद इंतज़ाम करा देता है। शाहिद भाई, दरबार सुल्तानी एक माशाल्लाह से एक बहुत बड़ा इदारा है और एक बहुत बड़ा सिलसिला है जो दरबार सुल्तानी के चला आ रहा है और एक काफ़ी अरसे से, जिस तरह आपने 1983 का बताया कि 1983 से तो आप इन हुए, जबकि ये उससे पहले से ये सिलसिला चला आ रहा है। तो आपका क्या ख्याल है, कितने मुरीदीन और कितने इसके चाहने वाले होंगे? लाखों में होंगे ये बहुत ये इंडिया के शहर रामपुर से सिलसिला चला हमारे तो रामपुर इंडिया के शहर जी। फिर हजरत साहब हिजरत करके पाकिस्तान तक ले आए और पाकिस्तान तकरीबन 1964 मुझे याद पड़ता है, गलती हुई तो माफी चाहता हूँ, लेकिन 1964 जैसे गया। फिर यहाँ पर कराची में क़याम हुआ। क़याम होने के बाद अल्लाह से सुल्तानी सिलसिले पूरे वर्ल्ड में हमारा पूरे वर्ल्ड में
जिसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, पूरे वर्ल्ड में इंशाल्लाह ये सुल्तानी सिलसिला चला आ रहा। अच्छा, इनकी ये इस सिलसिले की ख़ास निशानी क्या है जो वजूद में आपके होती है? रूहानी कैफियत होती है, मतलब रूहानी कैफियत से मतलब कि हर चीज़ का एक लिबास होता है, लेकिन हमारे हज़रत का लिबास मैं किसी को नहीं कहूँगा, लेकिन हज़रत का लिबास बिल्कुल वाइट होता है, बिल्कुल जी, बिल्कुल वाइट, टोटली भी वाइट। और इसमें यह है कि ये पूरा अमन की भी निशानी है। हाँ वाइट जी, अमन की निशानी, अमन की निशानी है। और वो मैं किसी को भी नहीं कहूँगा कि, लेकिन हमारे सिलसिला वाइट है और रूहानी ड्रेस है इनकी। सफ़ेद लिबास जो है, और सफ़ेद लिबास जो है वो अमन की भी निशानी है और सुकून की भी निशानी है। यानी कि सुल्तान दरबारी के अंदर जो है अमन भी है और सुकून भी है। और 1964 से माशाल्लाह से ये एक इदारा जो है ये बाकायदा आपने कहा कि पाकिस्तान से हटकर भी पूरी दुनिया के अंदर कायम है, जिसमें हिंदुस्तान भी है, बांग्लादेश भी, अमेरिका वगैरह सारे तकरीबन सारे मुल्क मिलते हैं। इदार भाई क्या कहते हैं आप शाहिद साहब के लिए? शाहिद साहब जो है दरबार सुल्तानी के माशाल्लाह रूह रवां हैं और 1983 से खिदमतगारों में शामिल हैं, तो आपका भी कोई सिलसिला है कहीं किसी की खिदमत करने का? सिलसिला है, आपसे होनी चाहिए। कादिया सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी अब्दुल्लाह अलैहि तौफीक से हम माशाल्लाह सिलसिले से मैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम मजीद भी हैं इस सिलसिले से। और हम आज देखिए अकीदा की दरबार सुल्तानी हो, कादिया सिलसिला हो, तो और सिलसिला हो किसी का जो मानता हो अपना अकीदा, जिस पर यकीदा ना हो, उस पर यकीन ना हो तो बेकार बेशक। तो सुल्तानी दरबार सुल्तानी के हवाले से शाहिद भाई जो है कि उनका अपने अकीदा रखा हुआ है कि अल्लाह ताला के बहुत करीब है, अल्लाह ताला के वो बहुत करीब है, सही, अल्लाह के नज़दीक उनका मुकाम तो आला है। हाँ। और उनके नज़दीक अल्लाह ताला ने जब उनको रियासत में जाते हो दरबार सुल्तानी, जब अल्लाह से लौ लगाते बंद कमरे में किसी कोने खांचे में, अल्लाह और बंदा हो, जैसे जस्ट लाइक तहज्जुद, इसलिए कहा कि तहज्जुद की नमाज उस वक्त अदा की जाए जब अल्लाह और बंदा का रिश्ता वास्ता हो। घर के बच्चे भी ना देख रहे हो, उस तारीखी में आप वजू करके पाक साफ होकर जब नमाज बिछा कर एक कोने में अल्लाह से लगाए, जो तहज्जुद के वक्त होता है, कोई न रखे, सिर्फ बंदा और अल्लाह का वास्ता होता है। इसी तरह से जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, बुजुर्गा बंदे होते हैं, और ये कराम होते हैं, सूफी होते हैं, अब्दाल होते हैं, जो इतने पाई का वली और पैगम्बर बने, ऐसे नहीं बने। उन्होंने अपने तमाम तर आसाइश और ख्वाहिश को एक साथ रखकर अल्लाह के नज़दीक को अपने आप को मनवाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, जैसे हम डिग्रियाँ लेने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, किसी किस्म की डिग्री देखिए, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, और डिग्री पर आ जाऊँ तो घंटे से लग जाएगा, मैं डिग्री तफसील बयान करता हूँ, किसकी डिग्रियाँ लेकिन इस ये डिग्री वो डिग्री है, ये रूहानी डिग्री वो डिग्री है जो अल्लाह से लौ लगाते, अल्लाह ताला उसे नवाजता है। अल्लाह का तू मेरा हो जाए, हम तेरा हो जाएंगे। अल्लाह कुरान में फरमाना है कि तुम 2 कदम ए मेरे बंदे, तो 2 कदम मेरे लिए आगे बढ़ेगा, हम 10 कदम तेरे लिए बढ़ेंगे। बाबा दरवेश कलीमी सरकार जो हमारे जज भी हैं यहाँ पर, वो इस टाइम आपको पता होगा कि पंजाब के रूहानियत के हवाले से रूहानी दौरे पे जो हैं वो पंजाब जो हैं वो पूरे पंजाब में गए हुए हैं, तो उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। और हम काफ़ी मिस कर रहे हैं उनको, मिस भी कर रहे हैं, और भाई फातिमा से भी हम थोड़ी सी बातें करना चाहते हैं। साहब का जो मुरादान है, उनके जो मुरादान है पूरे कराची में कहीं भी बैठे हो, अल्लाह ताला मुरादान को इन पे एतमाद करे और अल्लाह ताला इनको मज़ीद इस्तकामत दे और इनको कामयाबी नसीब हो जिस मकसद के लिए गए। कौल फेल जब सब चीज़ मिलाकर एक चीज़ बनती है, जी जी जी, तो हमारा कॉल ऑफ फेथ जिस बंदा का सही होगा और सदाकत पर मुबनी होगा, सच्चाई पर मुबनी होगा और खौफ खुदा दिल में होगा और बंदा का खुदा की खिदमत करने का जज्बा से सरशार होगा, तो अल्लाह ताला से नवाजता है। तो अल्लाह जब उसे नवाजता है तो अल्लाह ताला कहता है कि तुम्हें वो ताकत, वो पावर इख्तियार दे रहा हूँ तो तुम दूसरे को नवाजो। सुल्तानी साहब का हवाले से कहा गया, शायद भाई शाहिद साहब आपको जिसका पैरवी कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें एकदम उस मुकाम दे दिया है, एकदम मर्तबा दे दिया है, आप उसके हाथ में बैठ लिया है, उस हाथ में बैठ करने से
आपके जो आपका जो लिंक होगा उस लिंक के जरिए आप पीछे वाले को फैसला पहुंचा सकते हैं। करने वाला अल्लाह की ताला करने वाली अल्लाह ताला की ताला। जैसे एक डॉक्टर है, जी। डॉक्टर के कई किस्म डॉक्टर तो कोई डॉक्टर की नेक नामी होती है, बदनामी होती है, शिफा देने वाला अल्लाह ताला के साथ होता है। एक डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, एक डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो शिफा मिल जाती है, एक इंजेक्शन लगाता है बंदा मर जाता है। लेकिन अल्लाह ताला बोलता है कि इसको चाहो शिफा दो और इसको बहुत इज्जत मुंतसा इसको इज्जत दो, उसको कोई जिल्लत नहीं दे सकता। बेशक भाई की बात आने वाली डिग्री की बात हो रही थी जी, इसमें डिग्री में बिल्कुल शक नहीं है। एक जगह जो सेमिनार हुआ था तो मुझे नहीं, मैं वो स्पीच में मैं नहीं था, बल्कि हमारे एक दोस्त थे वो स्पीच करनी थी। अच्छा। मौजूद था कोर्ट ऑफ कंडक्ट। अच्छा। ये पाकिस्तान की बाहर नहीं, पाकिस्तान से बाहर की बात है। कोर्ट ऑफ कंडक्ट पे हमने स्पीच करनी थी, तो जिन जो मेरे दोस्त ने स्पीच करनी थी वो इत्तेफाक से बीमार हो गए, आ नहीं सके, तो मुझे रोस्टर पे खड़ा कर दिया गया और कहा कि जी आप कोर्ट ऑफ कंडक्ट पे स्पीच करें। तो मैंने कहा जी हमें किसी के कोर्ट ऑफ कंडक्ट पे जरूरत ही नहीं। इसलिए कि जब हम बाजार से कोई फ्रिज लाते हैं, टीवी लाते हैं, बुक लाते हैं, तो उसके साथ एक बुक मिलती है जिसे हम टेलीग्राम या महंगा बुक कहते हैं। इसी तरह जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया तो खासतौर मुसलमान को, तो हमारे साथ भी एक महंगा बुक उतारी जिसमें कलाम पाक कहते हैं। अगर इंसान कहीं भटकता है, बीवी के हुकूक, माँ के हुकूक, पड़ोसी के हुकूक, तो तमाम चीज़ हमारी लॉ, पूरी लॉ हमारी कलाम पाक की किताब में भरी है, ज़ब्त हयात है, ज़ब्त हयात है। तो हम किसी के कोड ऑफ कंडक्ट को देखने के बजाय अपनी किताब को देखें तो मैं समझता हूँ कि आज हम परेशान ना हो। बेशक बिल्कुल आपने भी सही कहा और इराद साहब ने भी बिल्कुल अच्छी बात की। हमारे साथ नन्ही शहजादी माहिर जो हैं वो मौजूद हैं। हम माहिर फातिमा से ज़ैनब जो है हमारी बड़ी बेचैन है कि इनसे कुछ पूछने के लिए, इनसे कुछ बात करने के लिए। तो ज़ैनब क्या बात करना चाहती हैं, बात करें। असल में माशाल्लाह ये बच्ची इतनी प्यारी और इसने जो नात पढ़ी, इसकी आवाज़ और ये खुद मेरे दिल पे बिल्कुल बैठ गई है बच्ची। तो मैं इससे ये सवालात करना चाहती हूँ। आपका नाम माहिर फातिमा है, बहुत प्यारा नाम है, किसने रखा? मेरी खाला ने। खाला ने रखा। आपकी खाला भी बहुत प्यारी होंगी। नात पढ़ती हैं वो? वो तो नहीं पढ़ती। अच्छा, चलो बड़ी बात है कि खाला ने रखा, माँ बाप ने रखा। खालाओं का ज़्यादा जोर चढ़ता है। नहीं, माँ भी खाला भी सही, खाला भी माँ की जैसी होती है, अगर समझने वाले की ऊपर सारी बात। अच्छा माहिर फातिमा, आप क्या करती हैं? स्टडी करती हैं? कौन से स्कूल में? SM में। थोड़ा सा लाउड कौन सी क्लास में हो? 6। आगे क्या करना है? नात ख़्वां बनना है? देखते हैं अभी हम टिकटॉकर बने या नात ख़्वां बने, हम देखते हैं अभी, है ना। सही। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा माहिर फातिमा से मिलके और सबसे लाउडली बोलती हैं। हाँ। शायद नहीं, अभी कंफ्यूज है ये पर। नहीं, टाइट करके लेकर आए। अच्छा अच्छा, कंफ्यूज तो नहीं है ये बच्ची माशाल्लाह, ऐसा तो नहीं है कंफ्यूज नहीं है वो, मतलब एक थोड़ा सा सोच लाउड बोलने में, लाउड बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है फर्स्ट टाइम जितना भी हो। नहीं बेटा, हम इंशाल्लाह अगले वीक से जो नेक्स्ट वीक आ रहा है उसमें हम बच्चों का नातों का एक नातिया मुकाबला हमने रखा हुआ है। उसमें हम कोशिश करेंगे, आपको भी दावत देंगे, आप भी आइएगा लाजमी, और उस मुकाबले के अंदर आपने भी हिस्सा लेना है। और भी आपकी जितनी दोस्त हों, जितने ताल्लुक़ वाले लोग हों, उनको भी आप जो है वो लेकर आइएगा। फजीलत रमज़ान के हवाले से मैं अपनी बहन से 2 लफ्ज़ों के अंदर पूछना चाहूँगा, क्योंकि प्रोग्राम का भी वक्त ख़त्म हो जा रहा है और सहरी का भी बिल्कुल टाइम नज़दीक है। तो 2 लफ्ज़ों में आप बहन मेरी बताइएगा, फजीलत रमज़ान उसकी क्या शनाख्त, क्या तारीफ़, क्या करना चाहेंगी तारीफ़ फजीलत रमज़ान? फजीलत रमज़ान फजीलत मतलब रमज़ान की बरकत होती है रमज़ान के महीने में। जी अल्लाह ने रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, जी ये फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। इसमें ज़्यादा दुगना सवाब मिलता है, कहते हैं नेकी का सवाब 70 गुना मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान में नेकियां करना चाहिए, ज़कात देनी चाहिए, इंसान को अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। और अल्लाह ताला जो बड़ी बरकतें अता फरमाते हैं, रमज़ान में बड़ा मुबारक महीना होता है, बड़ी फजीलतें होती, बड़ी बरकतें होती। देखिए क्या क्या अल्लाह ताला रमज़ान में हमें खिला रहे होते हैं, हम लोग नहीं तरह खा रहे होते हैं, लेकिन रमज़ान में जो किसी का दस्तरखान आम दिनों में नहीं खा सकते, हम 11 महीने नहीं खाते हैं वो चीज़ें जो हम रमज़ान में खा रहे होते हैं। शाहिद साहब, फजीलत रमज़ान। फजीलत रमज़ान बहुत अच्छी बात है। मैं दूसरी बात में कहूँगा कि रमज़ान जो महीना अल्लाह ताला ने मुसलमान पर फर्ज किया है ना, साइंस आज हैरान है, साइंस आज हैरान है कि इंसान के जो हमारी पूरे साल की जो हमारे जिसमें वायरस होते हैं, सेल बाइट सेल होते हैं, जरासीम होते हैं,
इस रमज़ान की वजह से वो सब ख़त्म हो जाते हैं। और आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे रोज़े के फर्ज को बताया, लेकिन आज इसके हम देखते हैं 3-4 दिन आदमी को परेशानी होती है, फिर आपका जिस्म जो है वो आदी हो जाता है। और फिर जो आपकी जितनी भी चर्बी है, वाइट सेल है, और आपके सब आपका वो मशीन तेज़ी से काम करने लगती है। तो ये एक तरह की मुसलमान को एक्सरसाइज दी गई है रमज़ान के महीने के। बहुत बड़ी एक्सरसाइज है ये हमारी एक्सरसाइज है जी। और ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है। इस एक्सरसाइज में हमें जो अल्लाह ताला इस बात का बताते भी है कि हमें गरीबों का भी ख्याल रखना चाहिए। बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनके पास खाने को नहीं है, तो प्यासे हैं, भूखे, तो हमें इस बात का भी एहसास होता है कि हम भूखे प्यासे, तो उन गरीबों का हाल होता है जो भूखे प्यासे। बिल्कुल बिल्कुल। इसके इज़हार साहब, फजीलत रमज़ान मुख्तसर सा जवाब प्लीज़। आपकी गाड़ी में ब्रेक नहीं है, ब्रेक लगा लिया करे, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। फजीलत रमज़ान के वो मुबारक महीना है कि आम जब इंसान कुछ खाता है तो कुछ तकलीफ होती है, लोग बीमार पड़ते हैं, लेकिन रमज़ान एक ऐसा महीना है इसमें इतने तले गले चीज़ लोग खाते हैं, पकौड़े भी हैं, छोले भी हैं। आप पकौड़े में कई अक़साम के पकौड़े होते हैं, ठीक है, तेल घी वाले होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, कुछ लोग अलग खाते हैं, कुछ बहुत आइटम करते हैं, शरबत भी होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका कोई ऐसा खराबी नहीं होता, सारी चीज़ हजम हो जाता है और तंदुरुस्त तवाना रहता है। अब पूरा महीने अब जो जायका, जो छोले का जायका आम दिन में खाएं और अमन मुबारक में छोले खाएं, उसका जायका बहुत डिफरेंट होगा, फर्क होगा। पकौड़े आम दिन में खाएं, बाजार से घर पे बना के खाएं, फ्राई करके, उसका मज़ा टेस्ट कुछ और होगा। रमज़ान मुबारक के महीने में कुछ और होगा। जितने खाने पीने की अशिया है उसका लज्जत कुछ और होगा, और रमज़ान के मुबारक महीने में कुछ और होगा, डिफरेंट होगा, और उसमें खैर बरकत होगी। और जब दस्तरखान लगाते हैं रमज़ान में तो अल्लाह ताला पाँच खैर बरकत दे देता है, खत्म नहीं होता, दस्तरखान खत्म नहीं होता। वो मेहमान आ जाए, 5 लोग आ जाए, घर के अफराद बैठे हुए, वो बर्तन खाली नहीं होता। ये फजीलत रमज़ान की, लेकिन शर्त है नियत का सही होना काम के लिए अल्लाह खैर डालता है, बरकत डालता है। ये फजीलत रमज़ान, फजीलत रमज़ान नियत पे आपने कहा इतना मुख्तसर वक्त में जी बिल्कुल टाइम शॉर्ट है, अज़ान होने वाली है सर, अज़ान होने वाली है, मैंने फेरी भी करनी है, अज़ान होने वाली है। लेकिन मैं कहूँगा कि फजीलत रमज़ान एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा उन्वान, एक ऐसा सब्जेक्ट है कि तक क़यामत तक इसकी फजीलत बयान करते रहे, उसकी तारीफ तौसीफ बयान नहीं कर सकता, नहीं हो सकती। तलने की खुशबू आ रही है। हाँ, वो असर तैयार हो रहा है। हाँ नाज़रीन, आज हमारी फजीलत रमज़ान ट्रांसमिशन हमारी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू जारी है, और हमारा पहला अशरा मुकम्मल हो चुका है सहरी से और अफ्तारी से। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नशरियात आप लोग भी देख रहे हैं, और आप लोग काफ़ी लाइक भी कर रहे हैं, हमारे माशाल्लाह व्यूवरशिप भी बढ़ रही है, फॉलोवर भी जो है हमारे वो जो है वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं माशाल्लाह से। इसका मकसद ये है ज़ैनब कि हमारे प्रोग्राम को लोग देख रहे हैं, सराह रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा, उसमें भी वजह है, उसकी एक वजह ये है कि हमारा आज जो फजीलत रमज़ान फजीलत रमज़ान के हवाले से जो हम ये प्रोग्राम करते हैं, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हम ये दीन और दीनी दुनिया की बातें जो है मुकम्मल तौर पर करते हैं, और उसके साथ साथ दुनियावी बात भी हम करते हैं, कुछ हम सियासी बात भी करते हैं, कुछ समाजी हवाले से भी बात करते हैं, और हमारे इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हम आगाही मुहिम भी हम चला रहे हैं। इसके अंदर नसीहत भी है और कुछ वसीयत भी है। अब मुझे अपने होस्ट अरफात सागर, ज़ैनब चौधरी और मेरे जितने दीगर मेहमान यहाँ मौजूद हैं, SK इज़हार साहब, शाहिद सुल्तानी साहब और हमारी बहन जो हैं वो मौजूद हैं, इन तमाम को इन दुआओं के साथ हमें इन दुआओं के साथ अब इस प्रोग्राम से इजाज़त आपसे चाहेंगे कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। पाक परवरदिगार आलम हमारे मुल्क में जितने इदारे हमारे सरकारी इदारे काम कर रहे हैं, बशमूल पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेंजर्स, पाकिस्तान पुलिस और दीगर जितने सरकारी इदारे हमारे सिक्योरिटी इदारे काम कर रहे हैं, जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, जो बॉर्डरों पे लड़ रहे हैं, हम यहाँ सुकून की नींद सो रहे हैं और वो हमारे पीछे बॉर्डरों पे लड़ रहे हैं, और हमारे यूँ समझ लें कि अगर वो हैं तो हम सुकून की नींद सो रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता
وہ نہیں ہو تو ہم سکون کی نیند نہیں سو سکیں گے اور ہم افراتفری کی جو ہے وہ زندگی گزاریں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کو نیست و نابود کرے اور ہمارے تمام سرکاری اداروں کو کامیاب کرے, ان کے حوصلے بلند رہیں اور ہماری عوام, ہمارے پاک وطن کی عوام اور ہمارے ادارے یکجا ہو کر کام کریں. ہم اداروں کی عزت کریں, ادارے ہماری عوام کا خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. کھانا کھا لے. بریانی نہیں بنائے بھائی. اتنی تیزی سے کیسے بنے گی؟ تیز 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 یہ ہاتھ چلائے, تیز 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 یہ ہل نکالے, تیز 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 سب کچھ کرے. یہ لو بریانی. بڑی تیزی سے بنائے, داغ بھی نکلیں گے تیزی سے. نیا سرف ایکسل 100% مشکل داغ نکالے زیادہ تیز. سرف ایکسل.